اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین۔ اے مسلمانوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ میرا عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کا آنا اور دعوت الارض کا نکلنا یعنی پیکاک کی گواہی یعنی مور کی گواہی اور مسیح دجال کا فتنہ عظیم یعنی مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ کا معاملہ کوئی چھوٹا موٹا پولیٹیکل معاملہ سمجھے کیا آپ لوگ؟ یہ دنیا کا عظیم ترین مسئلہ ہے۔ یہ کوئی لوکل کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے حیدرآباد کی یا تلنگانہ کی یا دلی کی یا یو پی کی یا جاپان کی یا جرمنی کی یا امریکہ کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے۔ یہ پورا انٹرنیشنل ایشو ہے۔ جتنے دنیا میں انسان بچتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو یا ہندو ہو، یہ سارے انسانوں سے تعلق رکھنے والا پروجیکٹ ہے۔ یہی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے میری، اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے عالم اسلام کا۔ یا عالم اسلام کیا ہے؟ عالم دنیا ایک ہی ہے۔ اس دنیا میں جتنے اللہ والے لوگ ہیں یا نہیں ماننے والے ہیں یا ماننے والے ہیں، سب انسان ہی ہیں نا، وہ اللہ کے اسلام کے تحت ہیں۔ لہٰذا اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی لیڈر کا یا کوئی کاؤنسلر کا یا کوئی ایم پی ایم ایل اے یا منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک کے وعدوں کا معاملہ ہے جو پورا ہوا ہے۔ مسیح دجال سے آزمائے گا، پورا ہو گیا۔ اللہ بولا تھا مسیح دجال سے آزمائے گا، آزما لیا۔ اللہ بولا تھا دعوت الارض کو نکالے گا، نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ بولا تھا عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، بھیج دیا۔ اب حکم دیا مومنوں کو، مسلمانوں کو اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی۔ آپ بولیں گے کہ اطاعت کرے تو کیا ملے گا؟ ارے کیا ملے گا؟ نہیں، وہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، جہنم ملے گا نہیں تو اطاعت نہیں کریں گے تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، اطاعت کریں گے تو جنت ملے گی۔ پھر اب بولیں گے کہ بعض ہم تو جنتی ہو گئے بھائی، ہم تو حاجی ہو گئے، نمازی پرہیزگار ہو گئے، لہٰذا اب ہم کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ تو پھر آپ نے کفر کیا اور قرآن اور حدیث کا انکار کر دیا، لہٰذا آپ کافر ہو گئے۔ آپ کے اعمال سارے جہنم میں لے کے چلے جائیں گے آپ کو، کیونکہ آپ کے اعمال زیرو کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ جو اللہ کی آیتوں سے نشانیوں کا انکار کرے گا اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ دعوت الارض کے بارے میں یعنی پیکاک کے جتنے بھی ویڈیوز دیکھے لوگ، جس نے خلاف بیان کیا ہے، جس نے خلاف کہا کچھ بھی، اللہ کی مار پڑی ہے ان کو۔ اگر وہ پوری طریقے سے انکار کرتے تو پورے ہی اللہ تعالیٰ کے راستے سے برباد ہو جاتے۔ ان لوگوں نے ادھورے ڈاؤٹ میں آیا ہے، ڈاؤٹ میں آتے ہوئے انکار کیا، اقرار نہیں کیا، اقرار بھی کیا تو اطاعت نہیں کی میری اور اللہ کی، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ نے سزائیں دی۔ تو یہ کیا معاملہ کوئی ایک آدھ کوئی مسلم جماعت کا یا پولیٹیکل پارٹی کا سمجھ رہے کیا یہ بی جے پی پارٹی کا سمجھ رہے کیا معاملہ، یا کانگریس پارٹی کا یا کوئی ایم آئی ایم پارٹی کا یا کوئی سماجوادی پارٹی کا یا کوئی پریزیڈنٹ کی امریکہ کی پارٹی سمجھ رہے ہیں یا کوئی سری لنکا کی پارٹی سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سارے پارٹیوں کو اس میں آنا پڑتا ہے، یہ وہ پارٹی ہے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کی پارٹی کا مسئلہ ہے یہ۔ اے مسلمانوں، ایم آئی ایم کہ میں فیور میں اس لیے ہوں کیونکہ یہ سارے مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں اور حق کے واسطے لڑائی کر رہے ہیں، اسی لیے کلمہ گو کے خلاف ہم نہیں جا سکتے شریعت کے مطابق، اسی لیے میں ان کے فیور میں ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برے، ارے برے وہ نہیں، برے آپ ہو جو دوسروں کو برا کہتے ہو۔ یہی اسد الدین اویسی صاحب اور یہی اکبر الدین اویسی صاحب اور یہی برہان الدین اویسی صاحب، یہ کیا ان کا معاملہ ہے؟ مجھے تو یاد آتی ہے میرے پرداداؤں کی، ذوالفقار علی گوہر، مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر کی۔ اللہ تعالیٰ امت کو خالی نہیں چھوڑتا۔ یہ آج کے میں اور بھی علم رکھتا ہوں ان کے بارے میں، جنموں کا جو مسئلہ ہے اگر میں بیان کرنے بیٹھوں
तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जुल्फ़िकार अली गौहर की याद आती है तो मुझे असदुद्दीन अवैसी को देखकर, साहब को देखकर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की याद आती है अकबरुद्दीन अवैसी साहब को देखकर, बुरहानुद्दीन अवैसी साहब को देखकर याद आती है मौलाना शौकत अली की, जो मेरे सगे परदादा, चचेरे परदादा दो और सगे एक। लिहाजा मैं इनके बारे में क्या कहूँ। हर इंसान में कुछ गलतियां होती हैं, उस गलतियों को आप बाजू रखो। काम क्या कर रहे हैं उम्मत का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप अपने ही कलमा गो भाई को बद पीछे गाली देते हो, मजबूरी में कहते हो ये ऐसा है वैसा है, तो बगावत करते हो, बुराई करते हो, ये बहुत बड़ी बुरी बात है। आज उम्मत में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ठहर के बयान करते हैं तो मुझे मेरे परदादा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की याद आती है। और ये मामला क्या है मैं जानता हूँ, अच्छी तरीके से बयान नहीं करना चाहता। जुल्फ़िकार अली गौहर दादा की याद आती है तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को देखता हूँ, और मौलाना शौकत अली की याद आती है तो मैं बुरहानुद्दीन अवैसी साहब को देखता हूँ। लिहाजा ऐ मुसलमानों, ऐ मेरे भाई और बहनों, कान खोलकर सुन लो। और अब तुम्हारा गलबे का वक्त आ गया है, और गालिब होने के लिए, यानी तुम्हें उरूज पर आने के लिए, तुम्हें पहले अपने इल्म को बढ़ाना होगा। इसका सहारा तुम लो मुफ्तियों से, आलिमों के जरिए, क्योंकि आज इल्म अगर मौजूद है तो आलिमों में, मुफ्तियों में मौजूद है। वो ही मुसलमान कहलाने के काबिल हैं, बाकी तो सब बेचारे मजबूर नाम के मुसलमान रह गए हैं। अब आप बोलेंगे कि आलिम मुफ्ती ने कहा है कि मैं ईसा मसीह नहीं होता हूं। बच्चों से तो भिड़ लिए आलिम मुफ्ती हजरात, जरा अपने बाप ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम से एक बार बातचीत में एक एक हाथ तो हो जाए, जब पता चलेगा कि ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम किसको बोलते हैं और आलिम मुफ्ती हजरात क्या होते हैं। आलिम मुफ्ती हजरात का भी बाप हूं मैं रूहानी, ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम रूहानी बाप होता हूं उनका भी। वो जो इल्म रखे हुए हैं, वो इल्म के अंदर से ही उनको बताऊंगा हक क्या है, और जब वो तहकीक कर लेंगे और बोलेंगे कि हाँ वाकई में मोहम्मद मौदूद अहमद खान ही ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम है, और ये जमात अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद कादिरी जमात अहमदिया ही मसीह दज्जाल है, मखसूस मसीह दज्जाल, और ये दावतुल अर्स यही है पीकॉक मोर, कुरान हदीस के मुआफ़िक़, जिसे हम नहीं समझ पाए थे, जो उलझनों में हम थे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरे पक्के जाहिर कर दिए हैं। यही आलिम मुफ्ती कहेंगे आपको। तो आपके नुमाइंदे इनको बनाकर, आपके 150 करोड़ मुसलमानों के नुमाइंदे बनाकर मेरे साथ बिठा दीजिए, अदब के साथ, डिसिप्लिन के साथ और किताबों के साथ, और शुरू हो जाए एक एक टॉपिक पे बात, सबूत के साथ। तब आप देखेंगे 1350 निशान से मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम साबित होता हूँ, और मसीह दज्जाल तकरीबन 100 निशानात से साबित होता है। जितने कुल निशानात आए थे हदीस में सबसे साबित हो चुका है। अब कोई नया इल्म से कोई साबित करने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अगर आप इसके बावजूद भी अपनी नफ्स की पैरवी करोगे और मसीह दज्जाल को, मसीहा को और दावतुल अर्स को अपनी कोई किताबों से, अपनी सोच से जाहिर करना चाहोगे, तो कभी भी कबूल नहीं किया जाने वाला, सिवाय कुरान हदीस से कबूल किया जाएगा। क्या मुसलमानों, मेरे भाई और बहनों, समझने की आप कोशिश करेंगे? मेरी छोटी बेटी है, हाँ एक मिनट, ओके बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 7 बेटियां अता की हैं और बेटे भी दिए, और सबको मैं अल्लाह ताला की तालीम में लगाऊं। ये सारे बच्चे मेरे गवाह हैं, अल्लाह ताला की दावतुल अर्स की गवाहियों के गवाह हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये इनाम अता किया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं ग़लबे इस्लाम के लिए भेजा गया हूँ।
मैं हिंदुस्तान के लिए भेजा गया हूँ, पाकिस्तान के लिए भेजा गया हूँ, चाइना के लिए भेजा गया हूँ, पूरे 200 ममालिक 201 ममालिक वर्ल्ड के हर सारे वर्ल्ड सारा ग्लोब के लिए भेजा गया हूँ। और मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से आया हूँ। और जो मेरा इनकार करेगा वो अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का बागी, वो नबी का बागी, वो कुरान का बागी, वो उसकी जगह जहन्नुम है। नोट कर लें। ऐ मुसलमान भाइयों और बहनों, जो भी ये सुन रहे हैं मेरे वीडियोस को डाउनलोड करिए। मुसलमानों की एक पार्टी है हिंदुस्तान में, MIM, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन, अच्छी पार्टी है। थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। क्या उनके लीडर्स को मालूम नहीं कि ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा उनसे भी बढ़कर है? क्या ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मा का वो मुसलमान इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन तहकीक करने के लिए वक्त नहीं है, और सबको मालूम है तहकीक करने के लिए वक्त लगता है और उसका इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे भाइयों और बहनों, सारे मुसलमानों, स्पीच देना, बातचीत करना, यह हमारे नस्ल दर नस्ल से आ रहा है। मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मुझे सिर्फ अल्लाह ही ने सिखाया है। जो अल्लाह ने सिखाया है मैं बयान कर रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, सारे जहां में आपका गलबे का वक्त है, लेकिन सच्चे मुसलमानों का। मुनाफिक मुसलमान गलबे पे नहीं आने वाले, काफिर मुसलमान, जाहिल मुसलमान गलबे पे नहीं आने वाले। उसी तरीके से सारे हिंदुओं का गलबा है इस जहां में, अब सारे ईसाइयों का गलबा है, सारे यहूदियों का गलबा है। लेकिन सच्चे यहूदी हैं तो सच्चे मुसलमान होना लाजिम है। अब सच्चे हिंदू हैं तो सच्चे मुसलमान होना लाजिम है। सच्चे पारसी हैं तो सच्चे मुसलमान होना लाजिम है। सच्चे बुद्ध मत हैं तो सच्चे मुसलमान होना लाजिम है। और सच्चे यहूदी, सच्चे नसारा, सच्चे ईसाई हैं तो मुसलमान होना लाजिम है। और सच्चे मुसलमान हैं तो फिर मेरे साथ होना लाजिम है। और जब मेरे साथ होंगे तो जितने मेरे साथ होंगे वही सच्चे मुसलमान होंगे और हमारा ही गलबा होगा। आप बोलेंगे कि ये कैसा हो सकता है? हिंदू मुसलमान कैसे, सिख ईसाई यहूदी सब मुसलमान कैसे? तारीख उठा के देख लो, अल्लाह ने एक ही मजहब बनाया था दुनिया में, इस्लाम। उसी के टुकड़े टुकड़े हैं पूरे। कोई संस्कृत पे ही रुक गया तो कोई इब्रानी जबान पे ही रुक गया, कोई मूसा अलैहिस्सलाम पर ही रुक गया तो कोई नूह अलैहिस्सलाम पे रुक गया, कोई ईसा पे रुक गया तो कोई दाऊद अलैहिस्सलाम पर रुक गया। इसी वजह से आज मजहब के कई टुकड़े हैं, लेकिन ये सब हैं एक ही लाइन के। और जो सब लोगों को इकरार करते हुए नूह अलैहिस्सलाम को मानते हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हुए, मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हुए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हुए और ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हुए जब दाखिल हो गया है इस्लाम में, वो आज का पक्का मुसलमान है। लेकिन पक्के मुसलमानों में भी आज जो मसीह दज्जाल के फितने को देखकर और ईसा मसीह मेरे को देखकर मेरे साथ जो हो जाएगा वो पक्का मुसलमान होगा। ऐ मुसलमानों, ये मत समझो कि तुम पक्के मुसलमान रह गए हो, नहीं, तुम पर इम्तिहान आ गया है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का। इस फितने में तुम्हें कामयाबी हासिल करना है, तुम्हें मेरे साथ होकर ये साबित करना है कि तुम सच्चे मुसलमान हो। तो आज मैं हिंदुओं में से पक्के मुसलमान चुनूंगा, ईसाइयों में से पक्के मुसलमान चुनूंगा, यहूदियों में से पक्के मुसलमान चुनूंगा, बुद्ध मत में से पक्के मुसलमान चुनूंगा, और खुद मुसलमानों में से पक्के मुसलमान चुनूंगा, ईसाइयों में से पक्के मुसलमान चुनूंगा। भले ही वो 100 हो, 200 हो, 1000 हो या लाखों हो, वही सच्चे मुसलमान होंगे, बाकी सब काफिर। ये मैं नहीं, कुरान हदीस बयान करते हैं। क्या आपने दावतुल अर्ज़ पीकॉक की गवाही नहीं देखी? मेरे ऐलान पर उसने लब्बैक कहा, एक नहीं कई बार कहा। क्या वो जानवर से बदतर हो गए जब मुसलमान आज के? तो अल्लाह ने निकाला दावतुल अर्ज़ जानवर को और कलाम करवाया मेरे हक में, मेरे बयान पे, मेरे स्टेटमेंट पे लब्बैक कहलाने लगवाया। एक नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 300 बार से ज्यादा। और वो महीना हज का रहा, हज के महीने में हुआ। और इससे पहले पहली बार 7 जुलाई 2015 को चाश के वक्त पहला वाक़या जो खुदरती तौर पे उधर से आवाज़ आई। फिर उसके बाद जब तहक़ीक़ करने लगा, जब अल्लाह ताला ने इल्म अता किया तो सारी बातें सही साबित हो गई।
याद रखो मैं ही ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ। और मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जमात अहमदिया, जिसे काना दज्जाल भी कहते हैं, जिसे साइक्लोप भी कहते हैं, जिसे जलंधर भी कहते हैं, हिरण्यकशिपु भी कहते हैं, जिसे अंग्रामेन्यू भी कहते हैं, जिसे रावण भी कहा गया है, जिसे वीर वसंत भी कहा गया है, वो वही है। और मैं ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम हूँ, जिसे लॉर्ड शिवा भी कहा गया पुरानी ज़बान में, दत्तात्रेय भी कहा गया, वेंकटेश्वरा भी कहा गया, और नरसिम्हा भी कहा गया, कल की अवतार भी कहा गया, मेराको बसु भी कहा गया, जैसा खान भी कहा गया, ज़्यूस भी कहा गया, ऑसिरिस भी कहा गया, और महदी अलैहिस्सलाम मसीह इब्न दाऊद भी कहा गया। और मैं आ गया हूँ, मैं ही हूँ ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम। सारे सबूतों के साथ मेरा इनकार करोगे 100% काफिर हो जाओगे, चाहे आप हाजी हो या मुसलमान हो या नाम के मुसलमान या काम के। याद रखो मैं बहुत बड़ा इम्तिहान हूँ अल्लाह की तरफ से। सारी बातें पूरी हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो ख्वाब जो मक्का मदीना के शाम के थे उसकी ताबीर हिंदुस्तान निकली। खुसूम दुनिया से मुराद हिंदुस्तान बरसगीर, इराक़ से मुराद पाकिस्तान, सीरिया से मुराद इंडिया, खुसूम दुनिया से मुराद तीन तरफ पानी एक तरफ ज़मीन। ये सारी बातें पूरी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हदीस में ही आया है वो शाम जो मशरिक़ में होगा। और मशरिक़ का उठा के देख लो आप, हकीकत में जो शाम सीरिया है वो तो वेस्टर्न कंट्री है भाई, वो वो अरब के वेस्टर्न में आता है। ये हिंदुस्तान ही है जहाँ पर मैं आया हूँ। वो दमिश्क का मशरिक़ इलाक़ा ये कादियान पंजाब निकला जहाँ मसीह दज्जाल था 1991 में। जो एरोप्लेन निकला जो काना दज्जाल का गधा, इसी में वो आया था। और सारी निशानियाँ पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज 11 नवंबर 2015 है, ज़ोहर का बाद का